Good evening, friends. Welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 5th of July 2023. But before going any further, let us analyze कि हमने आज के लिए क्या analysis किया था कल. That is what we discussed yesterday for today. So it was very clear if we open gap up और gap up खुलने के बाद अगर 15 minutes का price action negative जाता है, right? If we open gap up खुलने के बाद अगर 15 minutes price action negative जाता है तो उसी के क्लोज से we will go for buying a put for shorting opportunity till previous closing. निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों जगह पे ही आज पहली 15 मिनट्स कैंडल नेगेटिव थी. ये 5 मिनट्स का चार्ट है. इफ आई टेक इट बैक ऑन 15 मिनट्स यू मे सी बोथ दी कैंडल्स वर रेड एंड उसके बाद दोनों रेड होने के बाद इसके क्लोजिंग के पास से प्रीवियस क्लोजिंग ही नहीं बैंक निफ्टी में बल्कि उसके नीचे तक वी गॉट अ नेगेटिव प्राइस एक्शन, राइट? उसके नीचे तक वी गॉट अ नेगेटिव प्राइस एक्शन इन बैंक निफ्टी एज वेल एज इन निफ्टी आल्सो वी गॉट अ वेरी गुड प्राइस एक्शन टिल द प्रीवियस क्लोजिंग, राइट? यहाँ पे उसके भी नीचे. बट नाउ व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर? यस्टरडे आल्सो वी डिस्कस्ड, राइट? yesterday also what we discussed कि जब भी we are searching for lower lows का opportunity, how many times we have discussed this. और यहाँ पे अगर पहले से ही कोई price action मौजूद हो, so always see that whether it is acting at support और support के जैसे act करके previous swing तोड़ रहा है. अगर it is breaking previous swing, it is better to exit. या फिर यहाँ पे if there is any bullish hammer kind of price action, कोई भी price action जो कि bullish turn out होता है, right? If that kind of price action happens, it is better to exit. So we got a very good opportunity in Nifty as well as in Bank Nifty too, जो कि अच्छे से lower lows की तरफ गया. और यहाँ से you may see in Bank Nifty also it started making hammers. Previous swing high के पास आया. निफ्टी में भी प्रीवियस स्विंग हाई के पास आया. इट वाज द बेटर टाइम टू एग्जिट. सिमिलरली द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, राइट? जैसे कल डिस्कस किया था वैसे ही दोनों जगह पे सिनेरियो थे और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग में मिली. नाउ एज फार एज दिस स्विंग इज कंसर्न्ड, राइट? एज फार एज दिस स्विंग इज कंसर्न्ड, वी नेवर डिस्कस दिस इन निफ्टी. बट फॉर बैंक निफ्टी आई हैड बीन पोस्टिंग ऑन फोरम की if bank nifty is able I started posting from 10:30 am itself कि अगर bank nifty is able to cross above 45,273, right, then there would be another pump opportunity which would take bank nifty at 45,353 और वहां से भी ऊपर there would be an opportunity for 45,450 and 45,500. I had posted this on forum today itself where I had mentioned 1 hour 4 minutes ago has posted on bank nifty if it crosses 45,350 on hourly. Upcoming targets for Bank Nifty are 44,450 and 45,500, which happened, right? ये तो हुआ ही आज. Moreover, another thing that I said that if 45,500 is not crossed on hourly, then it may again act as a resistance, right? अगर 45,500 hourly पे नहीं break होता, I'll explain the logic too. अगर हम hourly candles पे जाए, right? If we come back on hourly, everything that I am discussing right now, I had posted on forum in the live trading session itself. कि अगर आर्ली पे 45,500 ब्रेक नहीं होता है then it will act as strong resistance. You may see that ये आर्ली क्लोजिंग 12:15, इसका हाई क्या है 45,486 पर क्लोज कहां पे हुआ है 45,450. वापस ये दिस इज द टॉप, राइट? ये आज टॉप बना था. यहाँ पे टॉप क्या है 45,655, राइट? आर्ली इज एट 45,655 पर क्लोजिंग कहां पे? क्लोजिंग इज एट 45,316. मतलब आज एक भी आर्ली क्लोजिंग 45,500 के ऊपर नहीं हुई है. Why I was so eager to say this number 45,500, right? यही नंबर क्यों? क्योंकि any round numbers that we have been discussing since previous videos, काफी previous videos में मैंने ये डिस्कस किया था कि any round figures like let's say in Nifty also 18,000 or 18,500 or 19,000 will act as strong support or resistance. Resistance के जैसे कब act करेगा? If we are seeing higher highs, right? हाइज के पास डिस्कस करें एंड इफ वी वांट कि अभी 19,500 ब्रेक हो जाए निफ्टी में या फिर 20,000 ब्रेक हो जाए. आई एम जस्ट सेइंग कि नंबर्स क्या है, राउंड नंबर्स, राइट? कि एट दैट मोमेंट इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस. और सिमिलरली सपोर्ट के जैसे कब एक्ट करेगा? अभी निफ्टी कहां पे 19,389 पे, राइट? इट इज एट 19,389. सो 19,000 विल एक्ट एज साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऑल द राउंड नंबर्स. सिमिलरली 45,500 इज द राउंड नंबर यहाँ पे which will act as a strong resistance as long as major frames doesn't break it, right? As long as major frames doesn't break it. Does that mean ki you also need to have a bigger SL for it? No, this is just an psychology level to understand that ki हाँ कि ये बड़े-बड़े frames अगर बड़े-बड़े candles break करे, bigger frames candle if it breaks, then it is actually considered broken. And you may see on hourly
4500 is yet not broken, right? High बना है, once again listen carefully कि high तो बना है 45655 बना है, but the closing is at 45316, still keeping it as resistance, right? So that was the overall analysis for the today. Now what for tomorrow? कल के लिए क्या? Now if you see on days frame, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी, if you see on days frame, you may see बैंक निफ्टी वापस बीच में क्लोज हुआ है, राइट? ये एक अच्छी खासी बड़ी डोजी कैंडल बनाई है जिसकी बॉडी लगभग गायब है, देयर इज नो बॉडी, राइट? बट इट हैज क्लोज्ड इन बिटवीन मेकिंग अ डोजी एंड द क्लोजिंग इज एट 45301, the last 30 minutes average, right? So closing is at 45301. Here say the top, where is the top? It is 45655, far away. And again, where is the bottom? 455,000. Both the things are like 300 plus points. यहाँ से टॉप भी 300 पॉइंट दूर है और बॉटम भी 300 पॉइंट दूर है. निफ्टी में डेज कैंडल, लेट मी क्लोज ऑल दी लाइंस. फाइनली एक डे कैंडल नेगेटिव बनी है, ठीक है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बड़ा नहीं है, बट वी फाइनली हैव वन डेज कैंडल विच इज नेगेटिव आफ्टर लाइक व्हाट, आफ्टर 5 गैप अप के दिन. आज भी गैप अप ही था, टुडे वाज आल्सो गैप अप. आफ्टर 5 कंप्लीट डेज फाइनली वी हैव वन रेड नेगेटिव कैंडल. व्हेन कैन दिस कैंडल कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर? अगर कल निफ्टी वापस एक रेड ही कैंडल बनाता है जो इसका भी लो तोड़ दे, राइट? इसका भी लो तोड़ दे. व्हाट इज दी लो? 19300. So tomorrow if we again have a red bearish candle which breaks this low also, then we may say that कि अभी इसके ऊपर के जो भी level है 19400 19500 पे strong writing is going on and this will act as resistance. Now this can act as a top only if tomorrow there becomes a red bearish candle, right? या फिर इसके भी ऊपर चला जाए then this candle again becomes invalid, right? अगर closing इसके ऊपर भी मिल जाए या इसके बीच में मिल जाए, only if the low is broken. So let us analyze Nifty and Bank Nifty for tomorrow then. कि कल के क्या सिनेरियोज हो सकते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, सो लेट मी ब्रिंग बैक ऑल द लाइंस. नाउ वी आर इन द पैरेलल चैनल, राइट? वी आर इनसाइड द पैरेलल चैनल. इफ आई शो इट ऑन 15 मिनट्स ऑल्सो, जस्ट अ मिनट. So now we are inside the parallel channel. First thing. Second thing is, now what? Now let us try to understand all the three scenarios. अगर कल हम फ्लैट ओपन हो के, now look at this कि 19400 से we saw a selling once, वापस ऊपर गए, came closer to the top. What was top? 19433. Again we saw selling twice. So this point, both points are acting as resistance, right? ये दोनों पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं. इसीलिए फ्लैट ओपन होते ही अगर फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के वापस इस जोन के पास आ जाए, राइट? ये मिड जोन के पास आ जाए. यस्टरडे आल्सो आई वाज सेइंग पैरेलल लाइन में दिस मिड जोन हैज एक्टेड एज पैरेलल जोन में दिस मिड जोन हैज एक्टेड एज रेजिस्टेंस. और अभी नहीं, पुराने सीरीज के टाइम से भी, सिंस द ओल्डर सीरीज आल्सो पैरेलल लाइन में, वेयर डिड द पैरेलल लाइन वेंट? हाँ, कि पैरेलल लाइन में दिस जोन हैज एक्टेड एज रेजिस्टेंस, राइट? इसीलिए दैट इज द रीजन. आई डोंट नो वेयर द लाइन डिसअपीयर्ड. एनी व्हिच वेज, इसीलिए कल इफ वी ओपन फ्लैट, राइट, फ्लैट खुलने के बाद भी इफ वी कम क्लोजर टू दिस टॉप, इफ वी कम क्लोजर टू 19433 और यहां से वापस एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है 15 मिनट्स की फ्रेम पे, अगर यहां पे वापस एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, शूटिंग स्टार बन जाए, जैसे आज आर्ली पे शूटिंग स्टार है, राइट? ऑन आर्ली पैटर्न देयर वाज अ शूटिंग स्टार एट 2:15 PM, यानी 1:15 पे बनी थी. सो वैसे ही अगर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए या फिर ऐसे रेड बेरिश कैंडल बन जाए 15 मिनट्स पे, फ्लैट ऊपर जाती एट 19430, आई विल कंसीडर इट एट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग हाई ऑफ द कैंडल एज एसएल. वहां से वापस ये प्रीवियस क्लोजिंग तक के लिए, और वहां से भी अगर लोअर लोज फ्रेम रहे, राइट, वहां से भी अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन रहे, इफ देयर इज अ नेगेटिव प्राइस एक्शन इस तरीके से जहां पे साइडवेज भी जाके ऊपर का स्विंग हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, आई विल स्टिल स्टे इन द ट्रेड, राइट, फॉर द लोअर लोज फ्रेम. फ्लैट खुल के ऊपर जाके नेगेटिव हो जाए, फ्लैट खुल के अगर प्राइस एक्शन नीचे है, फ्लैट खुल के अगर प्राइस एक्शन नीचे है और नीचे आके इफ इट इज ब्रेकिंग दिस स्विंग लो इटसेल्फ, व्हाट इज दिस स्विंग लो? एट 18358. आई विल कंसीडर 18350. फ्लैट खुलते ही 18385 से इफ इट इज एबल टू ब्रेक 18350, राइट? लेट मी कम ऑन 5 मिनट्स फ्रेम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, यस. सो फ्लैट खुलते ही अगर 18350 ब्रेक करे, राइट, 18350 ब्रेक करे, then I will consider आज का लो as a target. यहाँ से I'll again buy a put considering today's low as the target, और वहां से भी अगर lower lows price action चलता है, ऐसा price action चलता है which is going downwards only, I'll still stay in the trade, right? I'll still stay in the trade as long as lower lows are continued.
यहाँ पे आके इफ इट स्टार्ट्स मेकिंग सपोर्ट, यहाँ से वापस एक बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है, राइट? जैसे यहाँ पे ये प्रीवियस डे वाज दी सपोर्ट एरिया, राइट? ये पूरा एरिया वाज दी सपोर्ट एरिया। सो यहाँ पे आके अगर वापस एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाने लगे जो प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दे, जैसे यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, देन आई विल नॉट स्टे इन द ट्रेड। वी डिस्कस्ड बोथ द सिनेरियोस। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन करता है टॉप के पास से, ओनली देन शॉर्टिंग। फ्लैट खुल के ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, वी आर अवॉइडिंग, वी आर नॉट बाइंग। फ्लैट खुल के नीचे जाए, 19350 ब्रेक करे, 19350 ब्रेक करके भी नीचे जाए, lower lows we are considering the opportunity। ये टूटने के बाद once it breaks 19350 it shouldn't again go closer towards 19396, right? इसके ऊपर जा रहे हैं, then we will exit the trade, then we will not stay in the trade। ये टूटने के बाद ऊपर नहीं टूटना चाहिए, only if it breaks this low and the price action is negative, only then we will stay in the trade for this targets। We discussed both the scenarios in flat। What if we open gap up? Now tomorrow again if we open gap up and if that gap up is above 19432, right? gap up अगर 19432 के ऊपर जाता है और gap up 30 मिनट सर्वाइव करता है, राइट? gap up होने के बाद अगर 30 मिनट्स प्राइस एक्शन 19432 के ऊपर ही क्लोज होता है, ठीक है, with a positive price action, only then if the high is broken I will go for long। now why for long? Because first of all we are back into parallel lines। I don't know where the lines went away, here I can see the line but here the lines went away। just try refreshing the chart once, reload, just a minute। I don't know why it is taking so much time। Okay, any which ways, here we have discussed all the scenarios। and gap up, what I was saying about gap up is कि gap up होने के बाद it has went down for selling twice, right? आज 19430 के पास से रिजेक्शन लिया है एक बार भी, और दूसरे बार भी when it came at the high of 19408 again it went for shorting। इसलिए गैप अप होने के बाद only if it is able to survive above 19435 after 30 minutes, only then I'll consider the long opportunity, right? then I'll consider the long opportunity for the first target of 19510 19520, उसके ऊपर भी हायर राइट्स रहता है, then I'll stay in the trade। if गैप अप होने के बाद वापस there is a negative price action, after gap up if there is again negative price action in first 15 minutes ही, और first 15 minutes की कैंडल अगर नेगेटिव हो जाती है जिसका लो वापस ब्रेक होता है, just like today it happened in Nifty as well as in Bank Nifty also, right? कि first 15 minutes की कैंडल नेगेटिव जाती है, उसका लो from there and again the low is broken, I'll consider shorting वहां से लेके previous closing तक, वहां से भी lower lows का price action हो रहा है, then I'll stay in the trade, right? then again I'll stay in the trade अगर gap up खुल के नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है। सो वी डिस्कस्ड बोथ द सिनेरियोस फॉर गैप अप। व्हाट अबाउट गैप डाउन? गैप डाउन अभी जस्ट द वे वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल गैप डाउन सिंस 26 से लेके अब तक एक बार भी गैप डाउन नहीं हुआ है, इसलिए गैप डाउन अगेन वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स, सी वेदर द प्राइस एक्शन इज गोइंग साइडवेज फॉर लोअर लोज और हायर हाइज, एंड ओनली गैप डाउन के बाद इफ लो इज बीइंग ब्रोकन, ऐसा नहीं कि हाई ब्रोकन, राइट? 30 minutes के बाद only if low is being broken, only then we will consider the shorting, right? That is the scenario। if high is being broken, gap down के बाद we are leaving the trade। so we discussed all the scenarios in Nifty। what about Bank Nifty? Bank Nifty में if I come back on 15 minutes का frame, now again in Bank Nifty if we are opening flat, right? flat खुलने के बाद I'll just wait and see if it is going up, यहाँ से कितना भी ऊपर जाए, as the seller is active at 45,500, यानी कॉल शॉर्टर्स आर एक्टिव एट 45,500 एंड अगेन दे आर एक्टिव एट 45,650 45,700 टू, इसीलिए यहां से ऊपर जाने के बाद अगर 45,500 तक भी जाए और यहां से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, वापस शूटिंग स्टार दे, एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाए जैसे यहां पे बनाया, आई विल कंसीडर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग, और वहां से भी लोअर लोस पे जाता है, आई स्टिल स्टे फॉर द लोअर अपॉर्चुनिटी ओनली, राइट? फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ओनली, कि फ्लैट खुल के ऊपर जाए और ऊपर जाके नेगेटिव प्राइस एक्शन करे। फ्लैट करके ऊपर ही जा रहा है विदाउट एनी नेगेटिव प्राइस एक्शन, आई विल लीव द ट्रेड, राइट?
दैट इज फर्स्ट सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो, अगर फ्लैट खुल के नीचे जाए, आई विल वेट फॉर द टर्न. फ्लैट खुल के नीचे जाए, ऐसा नहीं कि ये स्विंग लो तोड़ दिया, आई विल इमीडिएटली शॉर्ट, राइट, और आई विल इमीडिएटली बाय पुट. क्यों नहीं? क्योंकि नाउ सी द बायर्स आर एक्टिव हियर, यहां से उन्होंने सपोर्ट मिला था, इसलिए फ्लैट खुल के नीचे जाए. और अगर ये प्रीवियस डे की कैंडल का भी लो तोड़ दे, इसका लो क्या है? इसका लो इज the low of this candle is 45,040. so already 45,280 से 45,040 200 पॉइंट्स दूर है, राइट. इसीलिए फ्लैट खुल के अगर इसके नीचे आ जाए और इसके नीचे आके अगर प्राइस एक्शन यहां से साइडवेज चले जाए फर्स्ट 2 आवर्स में, somewhere closer to 11 or 11:30 am, if we are opening flat, if the price action goes down and if it is able to break this candle's low also, previous day's candle, ये previous day, right, this is previous day, not today, previous day's candle low also, that is 45,040 also, if it is able to break within the first 2 hours of opening, and from here if it continues the lower lows का price action, right, ऐसे lower lows का price action continue है और स्विंग हाई नहीं तोड़ रहा है और इसके भी नीचे जाता है, ओनली देन आई विल कंसिडर शॉर्टिंग, राइट, ओनली देन आई विल कंसिडर शॉर्टिंग इन फ्लैट सिनेरियो. अगर डायरेक्ट नीचे जाए, ऊपर जाए, ऊपर से 45,500, 45,550, 45,600 के पास, ओनली इफ इट इज मेकिंग नेगेटिव प्राइस एक्शन, then I'm interested in shorting. Straight ऊपर ही जाए, I am leaving the opportunity, right? Similarly, if a gap up happens, right? Any gap up which is closer to 45,500, 45,550 or 45,600, only if it is making a negative price action in first 15 minutes, just like today, just the way we discussed yesterday, if it is making any negative price action in first 15 minutes, एक अच्छी खासी red bearish candle बनाए, positive नहीं, not a bullish candle, a negative candle at first 15 minutes, if it makes a negative price candle, उसका लो ब्रेक होता है, then I'll consider shorting opportunity, considering high of the candle as an SL. If high is broken, I'm leaving the trade, right? Then I'm not taking the trade. अगर gap up खुल के if it is going positive, we are leaving the opportunity in Bank Nifty, क्योंकि Bank Nifty ने 2 बार प्राइस रिजेक्शन किया and it went down, right? ऊपर से रिजेक्शन लिया है. That is the reason कल gap up खुल के, then let it survive above this high, right? Let it survive on days closing above this high, only then for the next day we will think about buying, right, in Bank Nifty. But we are not thinking about buying if gap up happens, only shorting opportunity if there is negative price action. Gap down के लिए just like Nifty, again we will wait for 30 minutes, see whether the price action is sideways for lower lows or higher highs. Gap down होने के बाद in Bank Nifty I am interested to take call opportunity too. अगर gap down is closer to 45,000, right, gap down closer, it is closer to 45,000 और first 15 minutes की कैंडल ही अगर पॉजिटिव हो जाए, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ही पॉजिटिव हो जाए, हैमर बनाए जैसे यहाँ पे, सी लुक एट दिस हैमर, लुक एट दिस हैमर, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, लुक एट केम क्लोज एक्शन व्हेन इट केम क्लोजर टू दिस स्विंग लो, राइट. अगर ऐसी अच्छी खासी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए व्हिच इज क्लोजर टू 45,000, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टिल द प्रीवियस क्लोजिंग. और यहाँ से भी इफ हायर हाइज, दिस काइंड ऑफ वे हायर हाइज इज कंटिन्यू, देन आई विल स्टे इन द ट्रेड. सिमिलरली गैप डाउन में इफ 30 मिनट्स प्राइस एक्शन breaks the swing low, again I'm interested in buying a put for the lower lows ka price action, right, for the lower lows ka price action. In this way we have discussed all the 3 scenarios in Nifty as well as in Bank Nifty, right. On that note, I'm ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next